Well, we are going to get you all the details of that, but let's tell you how in the midst of a protracted farmers' protest, the real reason for the stir is now slowly being revealed. Well, Jagjit Singh Dalewal, a farmer leader whose union is part of the Delhi Chalo protest, can be seen on video now saying that the graph of Prime Minister Modi is going up high. He quips in this video that there are few opportunities and very little time left to bring down Prime Minister Modi's graph, especially after Ram Mandir's Pran Pratishtha. Now, this statement comes in ahead of the third round of talks between the centre and farmer leaders. This has led to the centre to question the very intent behind the protests. In fact, the government senior advisor, Kanchan Gupta, has said that the real agenda behind the so-called Kisan stir has now been revealed. He added that when protesters take recourse to what Baba Saheb Ambedkar had called grammar of anarchy, the real purpose is never the stated purpose. But first, listen in to what exactly farmer leader Dalewal had said while explaining the reason behind the protest. And you, the viewers, decide for yourself. मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया नुकसान वो ਇਹਦਾ ग्राफ डाउन किवें आ सकता है मैं बहुत बारी ਜਦੋਂ मैं ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ The BJP has said that the real reason behind the protest, which has held Delhi hostage, is now clearly to target Prime Minister Modi ahead of the Lok Sabha elections. Listen in. सीधा पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट है ये और पॉलिटिकल स्टेटमेंट इस प्रकार से कोई एक प्रदर्शन करके और वो भी एक इस प्रकार का एक खतरनाक दृश्य बना करके उस प्रदर्शन करने से क्या जनता मोदी से दूर हो जाएगी बल्कि ये तो उसमें और बढ़ा रहे हैं देखा जाए तो आज आम जनता में ये मैसेज आ रहा है कि ये तरीका ठीक नहीं तांत्रिक तरीके को हर कोई पसंद करता है कोई भी जाति होगी उस जाति को लोग देखते हैं सर आरएलडी किसानों की पार्टी है आज किसानों की सरकार के साथ बैठक भी आपको लगता है कि समन्वय बन जाएगा बातचीत से हल निकल जाएगा दुनिया की कोई समस्या नहीं है जिसका हल बातचीत से ना निकले थैंक यू But despite the involuntary admission by the farmer leader, the opposition continues to insist that the agenda behind the protest is not political. Listen in to their excuses. Agenda of farmers' agitation is an agenda for life of this nation. It's an agenda of 72 crore farmers and farm laborers. This agenda is not governed by politics. This agenda is also not governed by who will be in power. Question is, will India live? Will India survive? Can India survive without its 72 crore farmers and farm laborers? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर जी का जो प्राण प्रतिष्ठा किया जिसमें शंकराचार्य जी ने विरोध किया था लेकिन उन्होंने किया था तो उसको स्टंट बोलेंगे किसान के अगर इस देश के अन्नदाता को इस तरह की मजाक करना ये बीजेपी का अंदाज नहीं है इस देश में सबसे ज्यादा किसान है और किसान की इस तरह से कभी आतंकवादी कहोगे तुम उनको खालिस्तान कहोगे कभी उनका आंदोलन जी भी कहोगे और अभी बोलते कि स्टंट है ठीक है किसान स्टंट ही करता है खुद स्टंट करते नहीं है आप क्या करते रहे 10 साल में तो लोग स्टंट कर करके तुम अपनी पॉलिटिकल जिंदगी चलाते रहे Now remember, Prime Minister Modi has always been targeted by the Vipaksh over various issues. When Ram Leher swept India, the Congress calls the Prime Minister Ahankaracharya. Now when the world hailed vaccine method of India, Yashwant Sinha of the TMC said that India sent vaccine abroad rather than vaccinate its own. When the world hailed Made in India vaccines, Congress said that after 38 lakh Indians tested and then took the vaccine, Prime Minister then took the vaccine. When the world hailed India's COP26 vow, Congress said that Prime Minister Modi's Panchamrit will not solve the world's problems. After Prime Minister Modi's speech at the UNGA, the opposition then had mocked him, saying only a few seats were occupied when the Prime Minister had addressed the UNGA, and they are disappointed that no one applauded the Prime Minister. So let me go across
to our panelists. Joining us today on the show, Mr. R. Rajagopalan, senior journalist. Chaudhary Savit Malik is also joining us, the national president of the Kisan Union. चौधरी सवित मलिक जी, मैं आपके साथ पहले आऊंगी। अभी अभी हमने सुना डल्लेवाल जी ने बहुत कैटेगोरिकली बोला है कि मोदी जी का ग्राफ ऐसे बढ़ता जा रहा है, स्पेशली राम मंदिर के बाद, कि उनके ग्राफ को गिराना ही एम है। क्या यही है एम है पूरा फार्मर प्रोटेस्ट का, कि ग्राफ मोदी जी का गिरे अहेड ऑफ द इलेक्शंस? देखो, उसमें बहुत सारी बातें काट कर एक छोटी सी क्लिप दिखाई गई है। उन्होंने किस मध्य में वो कहा है, ये कहा है कि निहत्थे किसानों पर जो गोलियां चलाई जा रही हैं, जो लाठियां चलाई जा रही है, जो पानी चला जा रहा है, उसको लेकर उन्होंने वो बात बोली है। उनके बयान को काट कर दिखाया जा रहा है। मगर बोल रहा है बयान, मगर आप बोल रहे काट कर चलाया है। उनको इनकार हो गया है कि भाई हमको वोट पूरी मिलेगी और हमारा ग्राफ बढ़ गया है, लेकिन किसानों पर ध्यान देना चाहिए। क्या ये जायज है कि निहत्थे किसानों को आप लाठियों से मारोगे, गोलियों से मारोगे, डंडों से मारोगे, ड्रोन के द्वारा आंसू गैस डालोगे? अरे किसान भी आपका है, इन्होंने वोट दी है जब आप वहां तक पहुंचे हो, और वोट इसलिए दिया था कि आप पर भरोसा था। आपने, जब आप एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष थे, आपने कहा था कि हम एमएसपी के हक में हैं, और इन्होंने जब एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष थे, अपनी रिपोर्ट में कहा था कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। मगर ये बात नहीं बोली उनका। अभी हम पूरा ऑडियो टेप, पहली बात तो आपने बोला कि ये सारे निहत्थे किसान हैं, क्या क्या हो चुका है बॉर्डर में वो सबने देखा है, लेट्स नॉट गेट टू दैट। मगर सवित मलिक जी, एंड लेट मी पुट दिस पॉइंट अक्रॉस टू मिस्टर Rajagopalan, because he's got a big smile on his face. He is saying that it is because unarmed farmers are being victimized, and this is part of a larger soundbite which has been selectively edited by the BJP as they put it out. Is that true, or is there a larger agenda, a political agenda at play? There's a larger political agenda. They want to ensure that Narendra Modi should not come to third term. The agenda is very clear. They are getting foreign funds. They are getting from Canada. They are getting from UK. They are getting from Sri Lanka. They are getting money from Pakistan. And therefore, farmers' agitation is a fraud. It's a stunt. जो भी ये कह रहे हैं, एक बात बता दीजिए, बिल्कुल चुप रहे। लेट्स बी सिविल। सवित मलिक जी आपके पास आएंगे, आप इनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। ये मार्जिनल फार्मर्स का पैसा है, इतना पैसा है, इतना फार्मर्स का, आपके पास आ जाएंगे सवित मलिक जी। लेट्स स्टे अवे फ्रॉम पर्सनल अटैक्स। फिनिश योर पॉइंट सवित मलिक जी, आपके पास आएंगे इसके बाद। फिनिश योर पॉइंट राजगोपालन जी। ये यूपी में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, हरियाणा में नहीं है, क्यों सिर्फ पंजाब में है? तमिलनाडु में नहीं है क्यों? आंध्र में नहीं है क्यों? ये किसान नहीं है उधर। Therefore, नरेंद्र मोदी को ऊपर नफरत है, इसको पीछे कांग्रेस है। अच्छा सवित मलिक जी, आप सुनना नहीं चाहते तो क्वेश्चन तो सुन लीजिए। अभी राजागोपालन जी ने ये बोला कि ये जितने भी अभी है, लास्ट टाइम अराउंड जब 2021 के जो फार्मर यूनियंस थे, अब वो यूनियंस आपके साथ क्यों नहीं है? वो खुद सोचते हैं कि ये एजेंडा है। ये बोला गया है कि अभी फार्मर यूनियन को पता है कि कोई भी पार्लियामेंट सेशन बचा नहीं है, अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इस टाइम पे कोई भी लॉ चेंज नहीं हो, मगर फिर भी प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों? सब पहले समय दिया था, 6 महीने पहले तारीख रखी थी, इसीलिए रखी कि आप जो जितने सेशन चले आप कर लो। आपने ना बजट में कुछ किया, ना सेशन में किया, इसलिए हमको सड़क पे आना पड़ा। हम 36 महीने से कर रहे हैं। जब किसी की टॉकिंग ओवर ईच अदर, किसी की आवाज भी नहीं आएगी और किसी का समझ भी नहीं आएगा। Rajagopalan जी, I'll just come to you. Let's quickly listen in to Savit Malik. Then if I have time, I'll come back to you. Savit Malik जी, आप बताइए, मैंने आपको एक पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा, आपको पता है अभी पार्लियामेंट सेशन हो नहीं सकता, लास्ट सेशन खत्म हो चुका है, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के पहले तो क्यों हो रहे हैं प्रोटेस्ट अगर कोई एक्ट चेंज नहीं होगा? देखो, हमने इनको कम से कम 6 महीने पहले अल्टीमेटम दिया था। जब 13 महीने आंदोलन चला तो 26 महीने हो गए हैं, और इन्होंने कहा था कि हम 6 महीने पहले कर लेते प्रोटेस्ट, एटलीस्ट टर्म्स का कुछ कर, लॉ चेंज करवाना। अरे आपने जो झूठ बोला है वो जनता के सामने है। अब आप इलेक्शन में जा रहे हो
तो इसलिए तो हम आए हैं कि भैया आपने हमारे वादे पूरे क्यों नहीं करे। हमने तो लास्ट सेशन तक इंतजार किया और आपको पैसे चेतावनी दे दी थी कि अगर आप नहीं करोगे हम 13 फरवरी को आएंगे। तो इलेक्शन हो रहे हैं सवित मलिक जी, अगर सरकार ही चले जाए, लेट से दैट हैपेंस, आपको कैसे पता कि आप बीजेपी को आप टारगेट हो सकता है कि शायद कुछ पलटी हो जाए? आप क्यों अभी एजिटेट कर रहे हैं? आपने ये नहीं बताया। देखो हमारा किसी निजी आदमी से पार्टी से विरोध नहीं है, हमारा सरकार की नीतियों से विरोध है। कोई हमारा सगा नहीं। आपको तो बहुत सपोर्ट मिल रहा है आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से। लेट मी गो अक्रॉस टू राजगोपाल जी। इट्स नॉट पॉलिटिकल, दे से इट इज प्योरली पॉलिटिकल। आम आदमी पार्टी ने कनाडा से पैसा लेके ये ऐसे चौधरी साहब लोग के लिए खड़े कर दिया है। इससे पैसा से ईडी में रेड करना चाहिए। We are going to await on that because these are unsubstantiated. But go ahead, finish up. करना चाहिए। फॉरेन फंड है, बिल्कुल फॉरेन फंड इज एक्सपेक्टिंग दिस। विदेश से पैसा आ रहा है, इन लोगों को विदेश पैसा आ रहा है, सरकार क्या कर रही है? विदेश से पैसा आ रहा है। इसको लोग गिरफ्तारी करना चाहिए, इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। आप सक्षम नहीं है पकड़ने में। Well, you know, at the end of it, unfortunately, there's perhaps too much politics right now for us to actually sift through the facts. The point is, right ahead of elections, you have a farm protest which has come up, and remember, this after the last session has already concluded. So there is no way any farm laws can possibly be changed or laws be tweaked, because there is going to be no parliament session between this time and between the elections happening, which is why questions are being raised. And also the fact that many of the farmer unions who were part of the 2021 agitation, who had these conversations and discussions with the government today, are not part of this protest. Questions, of course, have been raised, but thank you so much, Mr. Rajagopalan ji, also Chaudhary Savit Malik ji, for joining us here on the show. With that, a short break.